Hello children, I hope you all are good. Today we are going to discuss the topic of SST that is going to categorized in your political science or you can say civics. Civics chapter number 24, need for laws and rule of the constitution. So in this chapter we are going to understand why do we need the laws and what is the role of constitution for proper governing in the country. So let's start the chapter with the discussion of need for laws. ज़रूरत क्यों है कानून की? मुझे तो नहीं लगता कोई ज़रूरत है. डू वी नीड सम रूल्स एंड रेगुलेशन इन आवर लाइफ? विदाउट रूल एंड रेगुलेशन वी कैन सर्वाइव. जस्ट इमेजिन यू आर प्लेइंग सम गेम्स. आप कुछ गेम खेल रहे हो, ठीक है, और खेलने दो. अब आपने कहा आउट है, उसने बोला नहीं नहीं मैं नहीं आउट. ना ना आउट है, ना ना मैं नहीं आउट, मैं तो बैट छोड़ूंगा ही नहीं. हाउ कैन यू कंपेल हिम और हर to leave the batting that you are out? जब आपके पास कोई रूल होगा, कोई लॉ होगा, कोई रेगुलेशन होगा, जब आप कहोगे स्टंप पे लग गया, स्टंप गिर गई है ना, आपका इसलिए आउट है, या कैच पकड़ी गई है इसलिए आउट है, या आप रन नहीं प्रॉपर ले आए तो आप जो है रन आउट हो गए हो, प्रॉपर टाइमिंग पे नहीं पहुंचे. So you are having the rules and regulation in the games. That's why your game is running properly. You are enjoying the games. Same as in the life, in the country, in the society, we also need the rules and regulation for the proper system of governing. Isn't it? So rules give certainty and uniformity to conduct some things. Suppose आपको एक और एग्जाम्पल दो कि आप गेम ही छोड़ दो, ठीक है. एक जजमेंट क्राइटेरिया हम आपको देते हैं कि आपने पेपर किया, ठीक है, पेपर में आपके आ गए 100 मार्क्स आ गए, 100 में से 100, और एक स्टूडेंट के आ गए 100 में से 20. मैम ने उसे बोल दिया बेटा यू आर फेल, वर्क हार्ड. सो ही सेड नो नो मैम आई एम नॉट फेल, आई गॉट 20 मार्क्स. नो नो यू आर फेल, नो नो मैम 20 मार्क्स. So how can the ma'am says that you are fail? When there is a rule and regulation, the person or the student who is getting more than 30% or 33%, he or she is going to pass. Below 33% is fail. If there is a criteria, if there is a rule regulation, then only the ma'am can use the word fail, otherwise she cannot. So it means we need the laws, we need the rules, regulation for proper conducting of the function. Same as traffic rule पे देख लो, ट्रैफिक जैम हो जाए, अगर हम ट्रैफिक रूल को फॉलो ही नहीं करें, सारे रेड लाइट, ग्रीन लाइट, येलो लाइट, कोई मतलब नहीं है, जाते जाओ जाते जाओ. बट व्हेन वी आर फॉलोइंग द ट्रैफिक रूल वी कैन सेव द ट्रैफिक जैम. So we need to follow the rules. So the chief purpose, why to make the rules? And numbers of examples are there where I can show you that rules and regulations are very very important for proper condition, proper smooth life running. The chief purpose of rules is to maintain decorum and everybody cares for others. आप decorum maintain करो, दूसरे की comfort को जो है उसको संभालो, समझो. A decent life in the society will become impossible in the absence of certain rules and regulation. So we can say that rules are very very essential for smooth running of the life. और rules क्या हैं? Rule is an idea बेटा, only an idea जो हम mutually जो agreed करते हैं जिस पर, that is rule, जिस पे सब agreed करें. अब ऐसे तो नहीं हो सकता कि हम एग्रीड ही नहीं कर रहे और रूल बन जाए उस पर, वो भी नहीं हो सकता. सो आइडिया विच हैज़ बीन म्यूचुअली एग्रीड अपॉन बाय द मेंबर ऑफ ग्रुप, सच एज स्कूल हो गया आपका, या आपका स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स हो गया. सो रूल बिकम अ लॉ व्हेन इट कैन इन्फोर्स बाय द गवर्नमेंट. वरना रूल तो बहुत सारे हैं, आप अपनी गली में भी बनाते हो डेली रूल, घर पे भी बनाते हो, लेकिन जब रूल को गवर्नमेंट इन्फोर्स कर देती है सो वो रूल लॉ में बन जाता है. Now the definition of law. Law क्या है? Law is a system of rules which is backed by the authority and power. और authority और power किसकी चलेगी? Government की चलेगी. And a violator of it can be punished.
ये तो सुन के मज़ा आ गया, है ना। लॉ क्या है? सिस्टम है, रूल्स का सिस्टम है जिसमें गवर्नमेंट की अथॉरिटी और पावर चलती है, और अगर कोई भी उसे वायलेट करता है, उसको नहीं मानता है, तो उसे पनिश किया जाएगा। सो फॉर्मेशन ऑफ लॉ इज़ अ लॉन्ग ड्रॉन प्रोसेस। एक कानून तो नहीं होता एक देश को चलाने के लिए, देयर आर सेवरल एन नंबर्स ऑफ लॉज वी नीड फॉर गवर्निंग द कंट्री, सो इट्स अ लॉन्ग प्रोसेस. When the early men settled down, community life settled, and then it necessitated certain rules so that the decency and peace can be maintained in the society. Gradually, it was realized that rules should be backed by the punishment. If we are not going to punish now, so no anybody can violate the law. लोग जो हैं डिस्करेज हो जाएंगे, डिसऑबे करेंगे लॉ को, जब उन्हें पता है कि कुछ नहीं होने वाला। लेकिन जब उन्हें पता है कि अगर हमने लॉ नहीं माना तो हमें पनिशमेंट मिलेगी, तो वो लॉ ओबे करेंगे। So in the beginning the laws were unwritten and uncertain, but with the passage of time, जैसे जैसे सोसाइटी कॉम्प्लेक्स होती गई, कंट्रीज बनती गई, एक पर्टिकुलर जोग्राफिकल बाउंड्री एरिया बनती गई, सो हमने भी लॉज बनाने शुरू कर दिए। एंड इट ऑल्सो बिकम क्लियर हु कैन मेक द लॉज फॉर द सोसाइटी। आज की डेट में लॉ कौन बनाता है? हमारी लेजिस्लेचर। Parliament and state assemblies are the legislature in our country, and the process of making laws is called legislation. हम कानून बना रहे हैं। Now written or unwritten, the laws can be written or unwritten, दोनों हो सकते हैं। Mostly they are in written form to alleviate any uncertainty about them. However, there are some countries in which laws are not written and they are identified by the convention only. In some countries like dictatorship, the word of the dictator is the final word. Law. Even dictators claim as they are following the laws. Such is the force of law that even when a military dictator takes over the government. बहुत जगह होता है अनरिटन है तो इतना ज़्यादा उसकी श्योरिटी नहीं है। अब आप देखो पाकिस्तान को, पाकिस्तान प्रीवियसली इट वाज द डेमोक्रेटिक, फिर क्या हुआ? मिलिट्री डिक्टेटर में हो गया क्योंकि मिलिट्री ने उसे अपने कंट्रोल में ले लिया। एंड देन जब वो गवर्नमेंट जो है पाकिस्तान की मिलिट्री डिक्टेटर के कंट्रोल में गई, ही प्रेजेंट टू बी फॉलोइंग द रिटन लॉज। द लॉज गिव अथेंटिसिटी एंड लेजिटिमेसी टू एन ऑर्गेनाइजेशन और गवर्नमेंट। फिर उन्हें लगा ये तो गलत है, अब हमें अपना कानून लिखना चाहिए। पहले हमने वर्बली बोला था तो किसी ने क्लेम ही नहीं किया, लिखेंगे ताकि सब कह सके कि हाँ यही था और इसी को फॉलो करना है। बट बहुत सारी ऐसी भी कंट्री हैं जहाँ पे अनरिटन अभी भी लॉ है। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लॉज की बात करते हैं हम, तो लॉ शुड बी सर्टेनली सर्टेन बाय नेचर। इट इज़ फॉर दिस रीजन दिस लॉज आर रिटन डाउन। लॉज जब हम लिख रहे हैं ना तो सर्टेन होने चाहिए। किस चीज़ पे लिख रहे हैं? फिक्स्ड होना चाहिए। Laws should be made by the authority. It is for this reason that laws are made by the legislature. In our country, laws are made at two level. Parliament होती है ना, पार्लियामेंट जिसमें लोकसभा राज्यसभा दोनों होते हैं, सो वो पूरे कंट्री का बनाती है। और स्टेट असेंबलीज होती हैं जो हर स्टेट में लेजिस्लेशन बनाती हैं। थर्ड लेवल जो है लोकल सेल्फ गवर्नमेंट है, विच कैन मेक लॉज इन अ लिमिटेड स्फीयर। सो हमारे यहाँ तो 3 लेवल की गवर्नमेंट है और 3 लेवल पे डिफरेंट टाइप के लॉज इनैक्ट होते हैं। देन द लॉज शुड बी इन्फोर्सेबल, इन्फोर्सेबल होने चाहिए। अगर ये इन्फोर्सेबल नहीं है तो कोई भी वायलेट कर लेगा कि कुछ होने नहीं वाला। इट शुड हैव द फोर्स ऑफ गवर्नमेंट बाय विच ऑल मेंबर्स शुड फोर्स टू ओबे द लॉज। इट इज़ अ फंक्शन ऑफ एग्जीक्यूटिव टू इन्फोर्स द लॉ। ऐसा नहीं होगा तो भाई मन किया तो मान लिया, नहीं मन किया नहीं माना। इट शुड इन्फोर्सेबल बाय लॉ। फॉर एग्जाम्पल द पुलिस डिपार्टमेंट इन्फोर्सेस द क्रिमिनल लॉ, it is by that it catches the thief or robber. Similarly, the enforcement directorate ED can catch a violator of the financial crime. So हर डिपार्टमेंट के अपने लॉज होते हैं जिसको उन्हें इम्पोज भी कराना होता है। The government's power to punish rests in the judiciary court of law. ये भी ध्यान देना है, जो भी वायलेट करे उसको पनिशमेंट मिलनी चाहिए। एग्जाम्पल आपको दिया हुआ है, when the police department catches a person who is accused of a theft, or when the ED catches a person who is accused of a financial crime, it takes time to the court of law. कोर्ट ऑफ लॉ के पास उसे लेके जाएंगे,
वहाँ टाइम पे उस पर बहस होगी, उसके एविडेंस देखे जाएंगे, प्रूफ देखे जाएंगे। इफ़ ही और शी प्रूव गिल्टी तो उसको पनिशमेंट या फाइन भी इम्पोज होगा। द लॉ प्रोवाइड्स फॉर क्वांटम ऑफ पनिशमेंट और फाइन। द जज डिसाइड्स ऑन द बेसिस ऑफ एविडेंस। ये डिपेंड करता है, ये जज डिसाइड करेंगे कि उसे पनिशमेंट देनी है या उसे फाइन देना है, कितना क्राइम किया है, किस लेवल का क्राइम किया है। ईच लॉ हैज़ द प्रोविजन फॉर मैक्सिमम पनिशमेंट और फाइन। द जज कैन नॉट क्रॉस द लिमिट, कि जज का मन कर दिया नहीं मैं तो इतनी दूंगी सजा, नहीं, जो मेंशन है उतना ही पनिशमेंट दिया जाएगा। देन एन एक्यूज पोजेसेस द राइट टू अपील। जो पकड़ा गया है उसको अधिकार है अपील करने का। If he or she is not satisfied with the judgment of judge, he or she can go to the higher court and then Supreme Court also. Because we are having district court, then high court, then Supreme Court. तो ऐसा होता है कि आप अपील कर सकते हो नेक्स्ट लेवल के कोर्ट में। All the citizens, group and organization are supposed to follow the laws. सबको फॉलो करना है, चाहे विलिंगली चाहे अनविलिंगली। इवन द गवर्नमेंट इज बाउंड टू बाय द लॉ। गवर्नमेंट को भी अपने जो लॉ मेंशन है कॉन्स्टिट्यूशन में उसके अकॉर्डिंग ही काम करना होता है। नाउ नोइक पे चलते हैं बेटा। देयर आर 3 ऑर्गन्स ऑफ द गवर्नमेंट। 3 ऑर्गन है गवर्नमेंट के। वन इज द लेजिस्लेचर। लेजिस्लेचर का काम होता है लॉ बनाना, इट्स अ लॉ मेकिंग बॉडी। देन एग्जीक्यूटिव। एग्जीक्यूटिव का काम होता है टू इम्प्लीमेंट, इम्पोज कराना लॉ को। जुडिशरी interpret the law. If anybody is going to violate the law, they can punish or fine them. Now, what are the functions of the laws? कानून काम क्या करता है? The law give a sense of certainty and justice. ये है और न्याय भी है। Main function we can describe as number 1, the laws remove any uncertainty in case there is some ambiguity about a law the court interpreted. अगर ऐसा लगता है कि भाई कुछ गड़बड़ हुई है, मान लो पार्लियामेंट से ऐसा कुछ कानून पास हुआ है which is not in the favor of the country and Supreme Court can interpret it if Supreme Court find it is against the ideal of the Constitution. तो सुप्रीम कोर्ट उसे नल एंड वॉइड डिक्लेयर कर देगा वहीं पे। सो इसलिए लॉ रिमूव करता है अनसर्टिनिटी को। लॉज आर मेड टू इंश्योर द लॉ एंड ऑर्डर। ये ज़रूरी है, लॉ एंड ऑर्डर, पीसफुल इन्वायरमेंट बना रहना चाहिए। गवर्नमेंट कैन स्पेंड मनी ओनली थ्रू द लॉज। अगर हम लॉज नहीं बनाएंगे तो गवर्नमेंट मनमाना खर्चा करेगी, कहाँ करेगी पता भी नहीं चलेगा। लेकिन अभी लॉ से अबाइड है गवर्नमेंट। सो बजट जो बनाएगी एवरी ईयर, जो भी लॉ दिए हुए हैं फाइनेंशियल लॉ उससे रिलेटेड बनाएगी। गवर्नमेंट डिसाइड करेगी कि कहाँ पे मनी कितनी खर्च करनी है, कहाँ से टैक्स खरीदना है, मतलब कलेक्ट करना है, या कैनल्स, हॉस्पिटल, स्कूल कितने बनाने हैं, कितना बजट किस फील्ड में दिया जाएगा। द लॉज आर मेड टू इरेडिकेट सोशल इविल्स ऑल्सो। समाज में बहुत सारी बुराइयाँ फैली हुई हैं, लाइक डॉरी था, अनटचेबिलिटी, फीमेल इन्फेंटिसाइड्स। तो इन बुराइयों को दूर करने के लिए वी नीड द लॉ। Then the laws give social, political, economic justice to the people. Nobody can discriminate us on any behalf. And these ideals had been enshrined in our constitution also. The laws ensure welfare of the common people because it provide us the equal opportunities. So that's why it can make law to give the suitable opportunities to the people where they can develop and grow. जैसे रिजर्वेशन दिया हुआ है सर्टेन सेक्शन ऑफ सोसाइटी को, सो डैट उनका अपलिफ्टमेंट होता है। देन सिमिलरली द लॉज आर ऑल्सो मेड फॉर द वेलफेयर ऑफ द माइनॉरिटीज। यू कैन फाइंड आउट द पिक्चर ऑफ द न्यू पार्लियामेंट ऑफ इंडिया हेयर एंड द डिफरेंट रिलीजियस पीपल लिविंग इन द इंडिया। नाउ रोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन की बात करते हैं। सो लाइफ ऑफ द कंट्री छोटी होती है क्या? नहीं, बहुत बड़ी होती है। देश हमारा हमेशा सलामत रहे और हर देश सलामत रहे। वाई पॉलिटिकल पार्टीज कम एंड गो, पॉलिटिकल पार्टी आती हैं जाती हैं, कोई रूलिंग में आता है, कोई अपोजिशन में आता है, पावर चेंज होती रहती है। ऑल थिंग्स आर मेंशन्ड इन द कॉन्स्टिट्यूशन।
कॉन्स्टिट्यूशन क्या है? इट्स अ सिस्टम ऑफ लॉज एंड बेसिक प्रिंसिपल्स दैट अ कंट्री इज गवर्न बाय। इट्स अ सेट ऑफ रूल्स एंड रेगुलेशन बेटा, बेसिक प्रिंसिपल्स और लॉज इसमें लिखे हुए हैं जिसमें ये मेंशन है हाउ द कंट्री इज गोइंग टू बी गवर्न। नॉर्मली कॉन्स्टिट्यूशन जो होता है रिटन डॉक्यूमेंट्स होता है मोस्ट ऑफ द कंट्री में, बट मैंने आपको पहले भी बोला था कुछ कंट्रीज हैं लाइक इंग्लैंड, वहाँ पे रिटन कॉन्स्टिट्यूशन नहीं है, बट द बेसिक लॉ जो है ascertained on the basis of conventions. So कॉन्स्टिट्यूशन में हर वो चीज़ मेंशन होती है, हर वो लॉ मेंशन होता है जिससे एक सोसाइटी, एक देश प्रॉपरली गवर्न होता है। रोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इन गिविंग अथॉरिटी एंड लेजिटिमेसी टू द लॉ। क्या रोल है? कॉन्स्टिट्यूशन जो है इट्स अ सोर्स ऑफ ऑल लॉज इन द कंट्री। दिस मीन्स दैट लॉज हैव टू बी इन अकॉर्डेंस विद द प्रोविजन एंड स्पिरिट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। कॉन्स्टिट्यूशन ने जो आइडियल्स दे दिए कि मान लो कह दिया कि द कंट्री विल बी द सेक्युलर और कंट्री प्रोवाइड द सोवेरियन, रिपब्लिक, फ्रेटर्निटी, इक्वालिटी, सो जो भी लॉ बनेंगे इनको ध्यान में रखकर बनेंगे। इट इज द कॉन्स्टिट्यूशन दैट गिव्स द लेजिस्लेचर अथॉरिटी। कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन है कि जो कानून बनाएगा वो लेजिस्लेचर बनाएगा, और कैसे बनाएगा वो प्रोसीजर भी मेंशन है। आप अपने आप अपना प्रोसीजर नहीं ला सकते हो। ऑल डिटेल्स हैड बीन गिवन इन द कॉन्स्टिट्यूशन। इफ अ लॉ इज नॉट एज पर द प्रोविजन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, सो सुप्रीम कोर्ट वहीं उसे नल एंड वॉइड डिक्लेयर कर देगा बेटा। Then it is the judiciary, high court, supreme court which decide whether the law is as per the spirit of provision of the constitution. इसीलिए हम कहते हैं सुप्रीम कोर्ट, जो कोर्ट्स हैं हमारे वो गार्जियन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन है। इसीलिए हमारा कॉन्स्टिट्यूशन स्ट्रांग है ना। अ लॉ शुड नॉट चेंज द बेसिक नेचर एंड स्पिरिट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। बहुत मुश्किल प्रोसेस है। हमारा कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो रिजिड भी है और फ्लैक्सिबल भी है। सो लॉ जो है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के बेसिक नेचर को चेंज नहीं कर सकता। नोट पे देखो, द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इज द लेंथीएस्ट कॉन्स्टिट्यूशन इन द वर्ल्ड। सबसे लंबा बड़ा लिखा हुआ कॉन्स्टिट्यूशन है। डाइसेंट इज ऑफन एक्सप्रेस्ड इन चाइल्डहुड। होता है ना ये डाइसेंट, तो मतलब ना लगता है ना मैं हमारे खून में बसा हुआ है, हर चीज़ का नहीं करना। मम्मी ने बोला दूध पी लो, नहीं पीना। अभी नहीं जाना बाहर खेलने, जाना है। जिस चीज़ को मना किया जाता है वो हम चाइल्डहुड में ना कई बार कोशिश करते हैं उसका प्रोटेस्ट करके, विरोध कर कर अपनी बात को मनवाने का, इज़न्ट इट? और ये काम हम कई बार कर चुके हैं और आज भी करते हैं। थोड़ी देर पढ़ लो, नहीं थोड़ी देर टीवी देख लो प्लीज़, ये आज भी हम करते हैं। सो व्हेन योर मदर इंसिस्ट यू से दैट यू विल नॉट एट ऑल गो। अगर मम्मी ने किसी काम के लिए बाहर जाने को कह दिया तो आप इंसिस्ट करते हो, नहीं नहीं मैं नहीं जाऊंगा, भैया को भेज दो, दीदी को भेज दो। सो देयर आर सम वेज टू एक्सप्रेस योर डाइसेंट। आप अपना प्रोटेस्ट करते हो, यानी आप जिस बात को नहीं मानते तो उसके लिए कोई ना कोई तरीका अपना लेते हो अपनी बात को रखने का। अब ये एग्जाम्पल यहाँ पे क्यों दिए हैं कि सेम एज अगर गवर्नमेंट में या कंट्री में कोई प्रॉब्लम आ रही है सो लोगों के पास भी अधिकार है अपनी बात को रखने का और प्रोटेस्ट करने का। डाइसेंट इज एन इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ आवर लाइफ, क्योंकि हम क्या है, अगर अथॉरिटी ने कुछ भी गलत किया तो उसके खिलाफ हम आवाज़ उठा सकते हैं। इफ़ इट इज़ नॉट डिज़ायरेबल लॉ वी कैन प्रोटेस्ट। However, it is important that dissent is expressed in a civilized and polite manner. ये नहीं कि आप जाके किसी को मार दो, पत्थर मार दो या दुकानें तोड़ दो या किसी को बर्न कर दो। दिस इज़ रॉन्ग वे। आप जब भी प्रोटेस्ट कर रहे हैं, डाइसेंट कर रहे हैं, तो एक सेंसिबल, एक सिविलाइज्ड मैनर में होना चाहिए। इट एक्सप्रेस्ड इन अ कंस्ट्रक्टिव और पॉजिटिव मैनर, नॉट द डिस्ट्रक्टिव मैनर। व्हेन योर मदर कुक्स अ डिश, सिंपल सोचो आप, और वो डिश आप लाइक नहीं करते तो आप क्या करोगे? उठा के बर्तन पटक दोगे, फेंक दोगे, मम्मा को मार दोगे, किचन में धम-धम करोगे, या एक कंस्ट्रक्टिव तरीके से आप प्यार से कि मम्मा ये मुझे अच्छा नहीं लग रहा, मैं कुछ और खा लूँ, या मैं इसे अब खा ले रहा हूँ, नेक्स्ट टाइम प्लीज़ आप इसे नहीं बनाना। दिस इज़ अ डिसेंट सिविलाइज्ड प्रोटेस्ट।
तो यही हमें कंट्री में भी करना है। द पर्पज़ ऑफ डिसेंट इज़ टू एक्सप्लेन अ सर्टेन आइडिया टू द अथॉरिटी। पर्पज़ क्या है विरोध करने का? कि हम अथॉरिटी को, गवर्नमेंट को ये बता रहे हैं कि आपने ये गलत काम किया है और ये कंट्री के लिए या हमारी कम्युनिटी के लिए सही नहीं है, आप इस पर दोबारा विचार करें। इन टर्न द अथॉरिटी कैन एक्सप्लेन वाई इट टुक अ सर्टेन एक्शन। अथॉरिटी क्या है, या तो अपनी बात को एक्सप्लेन करेगी या उसको रिकंसीडर करेगी। सो इसलिए जो डिसेंट है, इट शुड रिजल्ट इन द एग्रीमेंट, नॉट इन द वायलेंस। नाउ सी बेटा, आपको यहाँ पे एग्जाम्पल दिए हुए हैं बहुत सारे, जो आप देख सकते हो कि डिसेंट जो है कैसे हम कंस्ट्रक्टिव मैनर में शो कर सकते हैं। नंबर 1, वी कैन फाइल अ पिटीशन और एप्लीकेशन टू द अथॉरिटी। जैसे हम प्रिंसिपल को लिखते हैं ना एप्लीकेशन, हमारी ट्यूबलाइट नहीं चल रही है, या मेड ने सफाई नहीं की है, या यहाँ गंदगी थी। सेम एज वी कैन फाइल अ पिटीशन और एप्लीकेशन टू द गवर्नमेंट। देन वी कैन मीट द अथॉरिटी अलोन और इन द ग्रुप, मीटिंग कर सकते हैं। वी कैन रिपोर्ट टू अ मैटर टू द मीडिया, मीडिया की हेल्प ले सकते हैं हम, न्यूज़पेपर की, टेलीविज़न की। वी कैन स्टेज अ धरना कर सकते हैं हम, पोलाइटली बैठ सकते हैं एक जगह पे और टेक आउट अ प्रोटेस्ट, मार्च, रैलीज एक्सेट्रा इन पब्लिक। डिस्ट्रक्टिव डिसेंट इज ऑफन एक्सप्रेस्ड इन रोड। अब डिस्ट्रक्टिव डिसेंट क्या होता है? आपने रोड ब्लॉकेज कर दी, पब्लिक सर्विसेज को डिसरप्ट कर दिया, बसों को तोड़ फोड़ कर दी, प्राइवेट व्हीकल्स को आग लगा दी, शीशों को तोड़ दिया, गवर्नमेंट प्रॉपर्टी को लॉस किया। ये डिस्ट्रक्टिव है, ये गलत है, इस तरीके से एक्सप्रेशन नहीं होना चाहिए। Now moving to dissent to laws. Ours is a very large country, you know very well. So बेटा ये possible नहीं है that we can make the laws which are very very acceptable by everyone and every people feel very happy, because every people are having the different thought process, different life condition. So maybe sometime few peoples are not agreed with some law. Uniform तो बिल्कुल नहीं हो सकता कि सबके ही लाइकिंग के अकॉर्डिंग कानून जो है वो बन जाए। Though we have provided the best ideal from our constitution. A law may be according to the provisions of the constitution, yet some people can feel dissatisfied with it. Sometimes the government too can violate the provision of the constitution and make a law contrary of the provision. So ऐसा होता है और हर कंट्री में होता है. But when dissent is expressed in the constructive manner, so the government ought to look at it the positively. बस ये ध्यान रखना है हमें कि लॉज जो हैं वो फेवरेबल भी हो सकते हैं, कई बार अनफेवरेबल भी हैं किसी कम्युनिटीज़ के लिए, लेकिन हमें पॉजिटिव मैनर में उसे डाइसेंट करना है, सही से एक्सप्रेस करना है, ताकि गवर्नमेंट उसे प्रॉपर तरीके से एक्शन ले पाए। तो आपको एक एग्जांपल दिया हुआ है यहाँ पे डाइसेंट का, सॉल्ट सत्याग्रह। अगर आपको याद है तो ब्रिटिश रूल के टाइम पर महात्मा गांधी ने एक सत्याग्रह ऑर्गेनाइज किया था, सॉल्ट सत्याग्रह। क्यों ऑर्गेनाइज किया था? क्योंकि उस समय जो ब्रिटिशर्स ने सॉल्ट पे मोनोपोली कर रखी थी और हाई टैक्स लगा रखा था, दैट इंडियन कैन नॉट मैन्युफैक्चर द सॉल्ट विदाउट द परमिशन ऑफ ब्रिटिशर्स। सारा का सारा सॉल्ट मैन्युफैक्चरिंग उन्होंने अपने कंट्रोल में ले लिया और टैक्स को हाई कर दिया। सो विद द 78 फॉलोवर गांधी जी ने डाइसेंट किया, इसका विरोध किया कि क्यों भाई ये हमारी कंट्री है और हम क्यों नहीं बना सकते, और आप इतना हाई टैक्स किसी एसेंशियल गुड्स पे कैसे रख सकते हैं। तो साबरमती आश्रम से उन्होंने 78 फॉलोवर्स के साथ ये दांडी यात्रा शुरू की थी, ये सॉल्ट सत्याग्रह शुरू किया। ही वॉकड एवरी डे 3 किलोमीटर, जो आपका 300 किलोमीटर के अराउंड उन्होंने चलना शुरू किया था 12 मार्च 1930 से, और वहाँ से चलते 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 वो लास्ट में दांडी कोस्टल विलेज पे पहुँचे और वहाँ दांडी के लोगों के साथ मिलकर उन्होंने सॉल्ट को मैन्युफैक्चर किया। सो यहाँ पर क्या हुआ कि उन्होंने जो प्रोटेस्ट किया, जो डाइसेंट किया, वो बड़े पीसफुल मैनर में, सिविलाइज्ड मैनर में वो मार्च कर रहे थे ना, उनके फॉलोवर्स उनके साथ जुड़ते जा रहे थे, कोई वायलेंस नहीं, कोई कुछ नहीं। द पुलिस वॉज कीपिंग एन आइज ऑन दिस मूवमेंट कि जैसे ही ये लोग जो हैं वायलेंट होंगे या वायलेट करेंगे लॉ को, हम लाठी चार्ज करेंगे। लेकिन गांधी जी ने अपने फॉलोवर्स को कह रखा था पीसफुल मैनर में, फेस द पुलिस ब्रूटलिटी ब्रेवली। पुलिस ने क्या किया? गांधी जी को जेल में डाल दिया, अदर लीडर्स को भी जेल में डाल दिया। हाउएवर दिस कंस्ट्रक्टिव मेथड ऑफ एक्सप्रेसिंग डाइसेंट put so much pressure on the government that it had to suspend the salt law.
कितने अच्छे कंस्ट्रक्टिव तरीके से हुआ था ना, इसीलिए जो है सॉल्ट लॉ को उन्होंने वापस ले लिया। तो ये भी एक कंस्ट्रक्टिव तरीका है और इसी तरीके से डाइसेंट होना चाहिए। नाउ डाइसेंट टू द रिजर्वेशन, एक दूसरा डाइसेंट आपको एक केस स्टडी दी हुई है। रिजर्वेशन को लेके हुआ क्या कि रिजर्वेशन लॉ आया था टू अपलिफ्ट द डाउन ट्रोडन क्लासेस सच एज एससीज हैं, एसटीज हैं, ओबीसीज हैं, सो उनके लिए कुछ परसेंट रिजर्वेशन आया था। इसमें क्या था, टोटल 22.5% सीट्स इन एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन गवर्नमेंट एम्प्लॉयमेंट आर रिजर्व फॉर द नंबर और मेंबर ऑफ द दीज कास्ट एससीज एसटीज, और ये था कि 10 ईयर के लिए ये रिजर्वेशन चलेगा। बट द सेक ऑफ वोट बैंक पॉलिटिक्स ये रिजर्वेशन अभी तक चलता आ रहा है, इसे हम कहते हैं वोट बैंक पॉलिटिक्स, और ये इंक्रीज़ करके 27% कर गया। अब क्या था कि बहुत सारे जनरल कैटेगरी के लोग जो थे उन्होंने इसका डाइसेंट किया, क्योंकि जो बीपी मंडल कमीशन की रिपोर्ट आई थी उन्होंने बोला नहीं यहाँ पे सोशल इकोनॉमिक बैकवर्ड कास्ट भी हैं, ओबीसी कास्ट भी हैं, अदर बैकवर्ड कास्ट उन्होंने इसमें मिला दी, जबकि कॉन्स्टिट्यूशन ने एससी एसटीज़ मिलाई थी, इन्होंने ओबीसी भी मिला दी, और इनको भी जो है रिजर्वेशन मिलना चाहिए, और रिजर्वेशन का परसेंटेज भी बढ़ा दिया। अब क्या होगा, लोग इसके खिलाफ हो गए थे। अब ये जो बेटा बीपी मंडल कमीशन की रिपोर्ट थी कि 27% रिजर्वेशन कर दो, ओबीसी कास्ट बना दी उन्होंने, इससे जो है लोग काफ़ी इससे गुस्से में आ गए। लेकिन क्या हुआ, इसका इम्पैक्ट कि अदर कास्ट वाले बहुत सारे ऐसे लोग थे जिन्होंने कहा हमें भी रिजर्वेशन दे दो। नाउ द मैनी अदर कम्युनिटी रोज अप फॉर आस्किंग द डिमांड ऑफ रिजर्वेशन। At this time, what happened? The students in the colleges, in the school, they dissented this law. और डाइसेंट जो उन्होंने किया डिस्ट्रक्टिव मैनर में किया। डिस्ट्रक्टिव मैनर कैसे किया, उन्होंने अब जो है व्हीकल्स, पब्लिक प्रॉपर्टीज़, इनको फायर कर दिया, आग लगानी शुरू कर दी। सम ऑफ देम इमोलेटेड देमसेल्व्स टू, कुछ ने अपने आप को ही जला दिया। द गवर्नमेंट केम डाउन हैवली ऑन देम। सो ये डिस्ट्रक्टिव मैनर था और गवर्नमेंट झुकी नहीं, और बच्चे आत्मदाह कर रहे हैं, अपने आप को जला रहे हैं, पब्लिक प्रॉपर्टी को जला रहे हैं, गवर्नमेंट उन पे और जो है स्ट्रिक्ट हो रही है। अब स्टूडेंट्स वंस अगेन चोज द एक्सप्रेस डाइसेंट इन 2006। 2006 में उन्होंने कंस्ट्रक्टिव मैनर में जो है डाइसेंट किया। कैसे किया, दे प्रोटेस्टेड अगेंस्ट द रिजर्वेशन ऑफ सीट्स इन IITs, इन IIMs and medical colleges, demanded that admission should be given only on merit. They protested peacefully, staged dharna, took out procession, filed the case with the Supreme Court. Many other section of people like traders joined and supported them. A case was also filed in Supreme Court which ruled that the provision of reservation will not be available for creamy layer of this class. अब कंस्ट्रक्टिव मैनर में था तो सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई, और सुनवाई हुई तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ओबीसी में भी आप फाइंड आउट करेंगे, those who are having the good amount of livelihood, good economic status, they are not going to take benefit of this reservation. Now moving to the election as method of dissent. Could we use the election? Yes. If it is not possible for common people to show their dissent, so they are having a powerful weapon, that is the election. If you are finding that the government or the representative, they are not doing work for the welfare of the community, or they are making the law which is not supporting you, not favorable for you, so what you can do in the next election, use your right to vote and don't give them vote. Throw them out from the ruling power, and election can prove as the method of constructive dissent. Now we are going to discuss for the need for new laws. We need the new laws because society is dynamic, complex. With the passage of time, there is a lots of changes in the structure of the society. Old laws are not going to fit at a particular situation. So we need to amend the old laws and we have to bring the new laws there. एक एग्जाम्पल आपको दिया है ट्रिपल तलाक. इट वॉज यूज बाय मुस्लिम मैन टू एक्सप्लॉइट द विमेन. तलाक 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 एंड तलाक हो गया, बट द पार्लियामेंट एबॉलिश इट बाय इनेक्टिंग द न्यू लॉ. दिस हैज़ हेल्प टू इरेडिकेट द सोशल एविल. सो इस तरीके से ओल्ड लॉ को रिप्लेस किया गया न्यू लॉ से. इन द सेम वे द एग्जिस्टिंग लॉज हैव टू बी अपग्रेडेड
because the new times need the new situation, need the new rules and regulation. एक और एग्जाम्पल आपको दिया, देयर आर नंबर ऑफ टैक्सेस ऑन गुड्स एंड सर्विसेज बाय बोथ सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट. इन 2017 द सेंट्रल गवर्नमेंट इनेक्टेड द GST, द वंडरफुल एग्जाम्पल, गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स लॉ, टू मर्ज ऑल दीज टैक्सेस एंड सिंपली द टैक्स स्ट्रक्चर. इतना सारा टैक्स स्ट्रक्चर कहीं ले रहा है, कोई ले रहा है, सिंप्लीफाई वन टैक्स GST. So that is the amendment in the new law. Then the sessions of the parliament and the state assemblies are held 3 times a year, in which new laws are enacted while old laws are amended. तो ये 3 टाइम इनके होते थे सेशन. If needed, it is continuous process. There is a definite process of legislation. कानून ऐसे ही नहीं बनता, एक प्रॉपर प्रोसेस होता है. Constitution of India has been amended for 104 times to address the changing situation. हमने अपने कॉन्स्टिट्यूशन को चेंज किया 104 बार ताकि हम अपनी नई ज़रूरतों को फुलफिल कर सकें. So that's end for the chapter. Let's do the quick revision. What we have discussed: rules help to run an activity or organizational well. A law is a system of rules backed by the authority and power of the government. Laws are made by the legislature, lawmaking body. Laws have certain characteristics also. It is as per the laws that country is going to be governed. The constitution is the system of laws and basic principle to tell how the country is going to govern. Then a person or a group can express dissent against the rule or law in the constructive and as well as the destructive manner. There arises need for amending and legislating the new laws. With the new situation, the new laws are needed. So I hope you understand each and every topic. Now it's your turn. Do the exercise carefully.